Well, gentlemen, here I am Wing Commander KP Thakur. I am here to give you certain suggestions, certain advices for the personal interview part of SSB. The first thing, you must keep in mind that SSB consists three parts, that is psycho tests, psychological tests, personal interview and GTO's task. This all means psycho is considered from inside how you are, and personal interview what do you speak, and GTO task what you work. This is called मनसा वाचा and कर्मणा. आप मानस से कैसे हो, आप वाणी से कैसे हो और आप अपने कर्म से कैसे हो. तो इन तीनों में सामंजस्य चाहिए, तीनों में टोटल सामंजस्य चाहिए. अगर अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है और अच्छा करता है, मीन्स what positive you think and what positive you speak, you are able to implement all these things on the ground. Means practically you are positive. Okay, so here specifically I will tell about the personal interview part of SSB. In personal interview, the first thing when you go for personal interview, see that you are well dressed, you look like a gentleman by your attire, by your presentation, because see gentlemen, a person is known by what he wears, then he is known by what he speaks, then he is known by what he does. Means आप देखने में कैसे हो, means dress and all. So you should be dressed like a gentleman. लंबा, छोटा, काला, गोरा ये देखने का मतलब नहीं है. How you are dressed, your sense of dressing is what. Then what you speak, this is the personal thing. I am going to guide on this. You are also known by what you speak. बहुत कुछ पता चल जाता है जब हम आपसे कुछ बातें करते हैं. तो इसमें पहला ख्याल रखें और एक जानकारी रखें कि जनरली SSB पर्सनल इंटरव्यूज आर इन इंग्लिश. So you should have a good knowledge of spoken English. You should be comfortable in spoken English, and actually we consider that yes, okay, if you are 12th pass or appearing 12th, you should be at least 90% good in spoken English, so that you can express yourself, you can express your views to the interviewing officers. And if you are graduate, कोई समझौता नहीं, you have to be 110% good in spoken English. This is the language of personal interview. Now, why English is the language of personal interview and why not Hindi? I don't want to get into that part. There are many things why it has been kept, and most of you have been must be knowing that officers have to interact themselves among themselves in English among three services, and when they interact with people from other countries, they visit other countries for exercises and all, because this is one of the global languages, so they have to know English. So you have to be comfortable in English language. It is not that English language is superior to Hindi, it is nothing like that. And also it is not that an English speaking person is superior to Hindi speaking person, it is also not correct. There are many Hindi speaking people who are very good persons, they are gentlemen. So we will not get into this controversy. So you should be comfortable in spoken English. And see, gentlemen, first day when you approach SSB,
Then the first day is PPDT and OIR test for your screening part. This you have to pass. तो पहले दिन जब आप जाते हो SSB अप्रोच करते हो तो आपकी स्क्रीनिंग पहले होती है. उसमें OIR टेस्ट होता है, रीजनिंग का टेस्ट होता है. Then you write a story, then you narrate it in front of all. Then there is group discussion to find out a very good group story. This discussion is, there is purely in English, there is no Hindi in this. So it is very necessary that you are comfortable in spoken English so that you can express your views, you can express your story, you can take part in group discussion. It is very necessary that you are comfortable in spoken English. And then only when you pass, you will jump into the 4 of main tests. For 4 days, then you will be, आपको जो भी है, आपकी जो भी क्वालिटीज है, they will be visible there by your personal interview, by your psycho test, and by your GTO task. In personal interview, the first thing we look is how is your communication skill. Are you comfortable in English, spoken English? Then what we see, are you a confident guy? And is your presentation lively? See, gentlemen, a confident person is liked by all. And a lively person, चेहरे पे 10% स्माइल होनी चाहिए. Even if you are not able to answer some questions, no problem. But there should be smile, 10% smile on your face. Nobody wants to see a sad face. तो पहली बात क्या है? You should be well dressed as a gentleman. Then your communication skill should be good so that you can express your ideas, you can express your answers well. And then you should be a confident person. You should not present a sad face or puzzled face or a panic face. Okay, this shows desperation. If a person is puzzled or he's not smiling, has a sad face, looks scared, no interviewing officer likes such type of faces. And this is also a sign of desperation, and desperation leads to mistakes. Okay, so be comfortable. Don't think about your selection. See, selecting you is the job of other person who is sitting in front of you. So don't worry for his duty. He will do his duty properly. आपको अपनी ड्यूटी करनी है, आपको अपना परफॉर्मेंस देखना है, आप उसकी तैयारी करके आए हो. Another thing what we see, that you should be an honest person, honest in your answers and honest in your expression. Okay, you should be an original material, original person. तो इसीलिए हम कहते हैं कि present in original, present yourself in original, as you are. कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, कोई नकल नहीं होनी चाहिए. आप जैसे हो वैसे प्रेजेंटेशन करो अपना. हाँ, लेकिन यहाँ एक बात है कि इफ माई ओरिजिनल इज नॉट सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन, देन व्हाट आई शुड डू. तो इसी को प्रिपरेशन कहते हैं. इफ माई ओरिजिनल इज नॉट सफिशिएंट, देन व्हाट शुड आई डू. तो इसका आंसर ये नहीं है कि आप कुछ नकली चीज या ड्रामेबाजी करके आप अपने को प्रेजेंट करो दूसरे ढंग से. नहीं, ओरिजिनल रूप में आप अपने ओरिजिनल को इम्प्रूव करो. इफ योर ओरिजिनल इज नॉट सफिशिएंट, देन यू इम्प्रूव योर ओरिजिनल. देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. एक ट्रेनिंग शब्द कॉमन है. इवन साइकोलॉजी कैन बी ट्रेंड. इवन साइकोलॉजी कैन बी ट्रेंड. हम कहते हैं ना कि आजकल उसका मन बहुत बढ़ा हुआ है. तो ये क्या होता है? साइकोलॉजी हैज बीन ट्रेंड टू थिंक एवरीवेयर दैट ही विल बी सक्सेसफुल. ही थिंक्स पॉजिटिव, ही थिंक्स ही विल बी विन. हियर साइकोलॉजी हैज बीन ट्रेंड बाय सेल्फ और बाय समवन.
हम कहते हैं ना कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो ब्रेन वॉश का मतलब क्या है? हिज साइकोलॉजी हैज बीन ट्रेन्ड, समथिंग हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज साइकोलॉजी एंड समथिंग हैज बीन पुट देयर। तो साइकोलॉजी को भी ट्रेन किया जा सकता है, उसी तरह अपनी वाणी को भी ट्रेन किया जा सकता है। तो हम एक तरह से, यू आर ऑल्सो नोन बाय व्हाट यू स्पीक, तो वाई टू स्पीक नेगेटिव वर्ड्स। आप अपने जनरल बातचीत की भाषा में पॉजिटिव वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करो, लाइक कोऑपरेशन, हेल्प, डिटर्मिनेशन, जहाँ जैसा हो। नेगेटिव वर्ड्स बोलो ही मत। और व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिव वर्ड्स इन जनरल डिस्कशन in your family, with your friends, then what you speak, it starts, these words start training your psychology. These words start hypnotizing your psychology. So, see, the psychology trains your body. आप जो बोलते हो आपकी साइकोलॉजी when gets trained, it trains your body. आपके वचन को ट्रेन करती है। आपके वचन जब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, they start training your psychology. So, gentlemen, be an honest man, be a confident person. आपका जनरल अवेयरनेस बढ़िया होना चाहिए और आपका ग्रुप एंजॉयमेंट अच्छा दिखना चाहिए। एक चीज़ दिमाग में रखें, एसएसबी में कोई न्यूटन की तलाश नहीं हो रही है, कोई वैज्ञानिक की तलाश नहीं हो रही है। एसएसबी में एक ग्रुप एंजॉय करने वाले, एक कॉन्फिडेंट जेंटलमैन की तलाश हो रही है। इसलिए कंफर्टेबली अपने को पर्सनल इंटरव्यू में प्रेजेंट कीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने कहा 10% स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए, तो स्माइल रखिए। आप 10% स्माइल करते रहिए। प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए लाइवली पर्सन। और माइंड इट, इंटरव्यू का बोझ लेके मत जाइए। इट इज ए डिस्कशन, सो एंजॉय योर डिस्कशन। आपका जब इंटरव्यू होता है तो अपने इंटरव्यू को एंजॉय करिए। सोच के जाइए कि मैं अपने इंटरव्यू को एंजॉय करूंगा। सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, आपका परफॉर्मेंस आपके हाथ में है। आपके जो क्वालिटीज हैं दे विल बी डिटेक्टेड बाय अदर पीपल एंड इंटरव्यूइंग अफसर सिटिंग देयर। तो अपने को ओरिजिनल रूप में, ऑनेस्ट रूप से प्रेजेंट कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर प्रेजेंट कीजिए और अपने इंटरव्यू को एंजॉय कीजिए। तो इन चीज़ों के लिए, इसमें सक्सेस होने के लिए सब जरूरी है कि जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो उस सब्जेक्ट के विषय में अच्छा खासा ज्ञान रखें। जनरल अवेयरनेस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, इन योर कंट्री, अराउंड द कंट्री, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ग्रुप एंजॉय करते रहें। आपके खेलकूद का ग्रुप हो, आपका फ्रेंड सर्किल का ग्रुप हो, तो ग्रुप एंजॉय करते रहें और अपने को एक लाइवली पर्सन के रूप में प्रेजेंट कीजिए एंड दैट्स ऑल। इसके लिए डिस्परेट होने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ खास बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक क्वालिटीज़ की बातें हैं, तो दिस क्वालिटीज आर टेस्टेड एंड को रिलेटेड बाय ऑल 3 branch of this SSB, that is psycho test and personal interview and GTO task. और बच्चों, बिलीव करना, भगवान ने बहुत सारी क्वालिटीज आप में भरी हुई है। आपको भी हो सकता है पता न हो कि आप में कितनी क्वालिटीज हैं। आउट ऑफ 70-80 पर्सनल जो क्वालिटीज होती हैं, हम तो केवल 10-15 क्वालिटी पे ही कंसंट्रेट करते हैं। मे बी यू आर हैविंग मोर देन दिस क्वालिटीज, तो वो तो हमारे लिए बोनस हो जाएगा। तो बिलीव कीजिए, आप में क्वालिटीज हैं, कुछ ज़्यादा विजिबल है, कुछ कम विजिबल है। तो जो कुछ अच्छी क्वालिटी कम विजिबल है, अपनी जनरल लाइफ में उनको थोड़ा ज़्यादा विजिबल करने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं कि कोऑपरेशन वाली क्वालिटी है, किसी में कम दिखती है, तो इसका इलाज कैसे है? ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको कम कोऑपरेशन दिया है, नहीं। आप समाज में कोऑपरेट करना शुरू कर दो, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ। स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद द पीपल। ये तो जो क्वालिटीज है ये अमर है, अमर बेल है।
पानी पाते हरी हो जाएंगी। यू स्टार्ट कोऑपरेटिंग, आप में कोऑपरेशन बढ़ता चला जाएगा। पीपल विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद यू, यू विल फर्दर स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद अदर पीपल, एंड फाइनली इट स्टार्ट मैंने शोइंग दैट यस इट इज विजिबल इन यू। तो आप में ये अच्छी क्वालिटी विजिबल होनी चाहिए। तो इसको रियल लाइफ में अपने को ट्रेंड करते रहें, अपने को प्रैक्टिस करते रहें कि ये रियल लाइफ में आप में दिखती रहे, सबको दिखती रहे। सबको दिखती रहेगी तो वहाँ इंटरव्यूइंग अफसर को भी दिखेगी, जीटीओ को भी दिखेगी, साइको टेस्ट में ऑटोमेटिक रिटन में आ जाएगा। तो ट्रेन योर सेल्फ, ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर बॉडी, अपने वचन को ट्रेन करो। जैसे मैं बताया, पॉजिटिव भी बोलो, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करो जनरल डिस्कशन में, और जो बोलते हो उसको जमीन पे उतारो। वो जीटीओ टास्क है। बहुत लोग हैं दुनिया में जो बोलते हैं लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन करते कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोलते हो, जो अच्छा सोचते हो, जो बोलते हो, उसको प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतारने की क्षमता रखो, उसको बढ़ाओ। तो मैंने कहा ना, तीनों में सामंजस्य चाहिए। ठीक है। एंड जेंटलमैन, एंजॉय योर इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट।